Assalamu alaikum students. Hope you are fine. Class 1. It's all about your fifth slot, unit number 9. Time. Countdown page number 135 to 140. What is time? Time is the ongoing sequence of events taking place. The basic unit of time is the second. We can measure time using clock. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपको ये लर्न करने को मिलेगा कि टाइम को आप बाय वॉच कैसे देख सकते हैं और बता सकते हैं कि अभी डे या नाइट में क्या टाइम हुआ है. There are two types of clock. The first one is analog clock. अब basically analog clock होता क्या है? Analog clock is a circular phase clock with the number 1 to 12 around the outside and two hand, a short hand to measure hours and longer hand to measure minutes. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर आप इस तरह की वॉचेस यूज़ भी करते हैं. इसमें 1 to 12 तक काउंटिंग राइट की गई है. यू कैन सी टू हैंड्स हैं. लोंगर हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड. You can see red hand that is called minute hand and the small hand shows black in black color. That means is it's hour hand. On countdown page number 136, there are 6 analog clocks having different time. As you can see on the first analog clock, the small hand lies on a 4 and the bigger hand lies on a 12. It means the time is 4 o'clock. Make sure if your small hand lies on a 4, it denotes hours and the bigger hand denotes minutes. Bigger hand is lie on the 12 and the small hand lie on a 4. It means this is a 4 o'clock. Same as in the second picture, you can see the small hand is lie on the 7 and the bigger hand lies on the 12. It means this is 7 o'clock. In the third picture, you can see both hand lies on a 12. It means it's 12 o'clock. In the next picture, you can see the smaller hand lies between 10 and 11 and the bigger hand lies on a 6. It means half past 10. इसका मतलब है कि आधा घंटा गुजर चुका है 10 बजकर. मतलब 11 बजने में हम ये भी कह सकते हैं कि 30 मिनट रहते हैं और ये भी कह सकते हैं कि 30 मिनट्स हैव पास्ट 10. मतलब 10 बजकर 30 मिनट हो चुके हैं. सेम एज यू विल डू द नेक्स्ट टू पार्ट्स. नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी देयर इज अ small hand between 7 and 6 and bigger hand lies on a 6. It's mean half past 6. In the next picture you can see the small hand between 2 and 3. The bigger hand lies on a 6. It means half past 2. Now students, come on page number 137. In this page you are to draw the hands keeping in view the time below on each clock. As you have learned that the small hand shows hour while the big hand shows minutes. Small hand shows hour, the big hand shows minute. In the first part, you will draw small hand on 3 and the big hand draw on 12. So it will be shown 3 o'clock. Same as you will draw hands in the rest of the clocks. Students, now we are going to discuss digital clock. In this type of clock, there is no hand but only the digits. There is no hand but only the digits and shows hour and minutes. There are two parts in a digital clock, left hand side and the right hand side. Left hand shows hours while right hand side shows minutes. I am repeating again. Left hand side shows hours while right hand side shows minutes. Students, now look on page number 138. There are different digital clocks that shows different time. Now come to the first one. There is 4 on left side, 0 on right side. It means 4 o'clock. The time is 4 o'clock. In the fourth part, you can see there are 8 in the left side and 30 on the right side. That shows it's half past 8. That means half past 8. आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास
राइट साइड पे 30 हो, जैसे कि हम लोगों ने एनालॉग क्लॉक में भी देखा कि जब आपके पास जो नीडल है, जो आपके पास बिगर हैंड है, वो 6 पर हो तो इट मीन्स आपका हाफ पास्ट गुजर चुका है, मतलब आधा घंटा गुजर चुका है। तो सेम एज आप डिजिटल क्लॉक में देखेंगे, अगर आपका राइट साइड पे 30 लिखा हुआ है, इट मीन्स आपका आधा घंटा गुजर चुका है, हाफ पास्ट हो चुका है। अब जो लेफ्ट साइड पे आपका है वो शो कर रहा है आवर्स, तो मीन्स 8:30 हो चुके हैं, मतलब हाफ पास 8, मतलब आधा घंटा गुजर चुका है 8 बजकर। तो सेम एज यू कैन सी ऑन द सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, टाइम इज मैंशन इन वर्ड्स बिलो एंड यू आर टू राइट इन डिजिट्स इन द गिवन प्लेस। अब आप लोगों के पास वर्ड्स में लिखा हुआ है कि 2 o'clock, और आपने इसको किस में लिखना है, डिजिट में। सेम एज आप लेफ्ट साइड पे आवर्स लिखोगे और राइट साइड पे मिनट्स लिखेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 2 o'clock हुए हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट मिनट कोई नहीं है, तो वहाँ पर क्या आएगा, 0 प्लेस करेंगे। सेम एज जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे लिखा हुआ है हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट का मतलब है 30 मिनट्स गुजर चुके हैं, और कितने बज के गुजर चुके हैं, 4 बजकर। तो मतलब 4 बजे हम लोग किस साइड पे लिखेंगे, ऑन द लेफ्ट साइड, एंड 30 वी विल राइट ऑन द राइट साइड। Students, the next one topic is calendar. A calendar is a table that shows dates, days, weeks and month in a year. अब हमारा जैसे कि 2021 चल रहा है, इसमें हमारे पास, हमें पता है कि एक साल में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, और उन मंथ्स के नेम्स भी हमें आते हैं, जैसे कि हम लोग लर्न कर चुके हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब हर मंथ के डिफरेंट डेज होते हैं, कुछ मंथ ऐसे हैं जिनके 31 डेज होते हैं, कुछ मंथ ऐसे हैं जिसके 28 डेज होते हैं, कुछ मंथ ऐसे हैं जिनके 30 डेज होते हैं। अब हर मंथ को डिवाइड किया गया है वीक्स में, हर मंथ में ऑलमोस्ट 4 वीक्स होते हैं, और उन वीक्स में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो अब एक कैलेंडर जो हमें ये चीज़ शो कर रहा होता है, ये चीज़ बता रहा होता है कि कौन सा मंथ चल रहा है, उसका कौन सा डेट है, कौन सा डे है, कौन सा वीक है, हर चीज़ इसमें मेंशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड कैलेंडर। There are some general knowledge questions related to calendar. By using calendar, you have to solve and remember these answers. The first one is, how many days are there in the month of January? जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं, आपने कैलेंडर को सामने रखना है, और कैलेंडर को सामने रखने के बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि जनवरी में कितने डेज आ रहे हैं, वो 31 आएंगे, तो आप लोगों ने ब्लैंक में 31 लिखना है, और इस चीज़ को याद भी रखना है। विच मंथ ऑफ द कैलेंडर हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ डेज? कौन सा ऐसा मंथ है पूरे साल में जिसके सबसे कम, लीस्ट का मतलब होता है जिसके सबसे कम दिन आते हैं, तो वो है फरवरी। फरवरी वो मंथ है जिसमें 28 डेज आते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर? अब उसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल पूरे साल में कितने दिन होते हैं। अगर हम पूरे मंथ्स के डेज को ऐड करें तो दैट इज इक्वल टू 365। अगस्त कम आफ्टर द मंथ ऑफ जुलाई। अब अगस्त किसके बाद आता है? जुलाई के बाद। द 6th मंथ ऑफ द ईयर इज, आपने पूछे साल का छठे महीने का नाम क्या है, 6th मंथ का नेम क्या है, दैट इज जून। द टोटल नंबर ऑफ द डेज इन जून एंड जुलाई। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जून और जुलाई ये 2 मंथ्स हैं, इन दोनों के डेज को आपने काउंट करके बताना है कि टोटल डेज कितने हैं, तो दैट इज इक्वल टू 61। सेकेंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, साल का सेकेंड लास्ट, मतलब जो सेकेंड लास्ट से पहले वाला जो मंथ है उसका नेम क्या है, दैट इज नवंबर। There are dash days in a week. There are 7 days in a week. The last month of the solar year is, ये जो हमारा कैलेंडर है, दिस इज सोलर कैलेंडर, तो इसका जो लास्ट मंथ होता है उसका नेम क्या है, दिसंबर। द मंथ ऑफ द अक्टूबर हैज़ डैश डेज। अब कैलेंडर से आपने ये चीज़ देखनी है और उसके बाद ब्लैंक में लिखनी है कि अक्टूबर में कितने डेज आते हैं, दैट इज इक्वल टू 31। On countdown page number 140, here is a calendar of January and some questions are mentioned below. You can see the first one question is, what is the day on the 1st January? By using calendar, आप कैलेंडर के थ्रू देख सकते हैं कि जो फर्स्ट डे आ रहा है उसके ऊपर क्या मेंशन है, मंडे। तो मीन टू से जो जनवरी का फर्स्ट डे है उसका डे क्या होगा, मंडे। द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ इज ऑन डैश। अब आपने डेज में जाना है, जैसे कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि जनवरी के नीचे डेज लिखे हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आपने संडे पे जाना है और संडे पे जाने के बाद अपने सबसे पहला दिन देखना है, तो जो डेट देखनी है वो क्या आ रही है, दैट इज 7, क्योंकि जनवरी का मंथ का कैलेंडर है तो आपने क्या लिखना है, 7 जनवरी। देर आर डैश फ्राइडेज इन द होल मंथ। अब आपने फ्राइडे वाली रो में जाना है और वहाँ पे काउंट करने हैं कि कितने आपके पास वीक्स आ रहे हैं
होल फ्राइडे कितने आ रहे हैं पूरे मंथ में, 1 2 3 एंड 4। उनकी डेट्स क्या है, 5 जनवरी, 12 जनवरी, 19 जनवरी एंड 26 जनवरी। द फर्स्ट वेनसडे ऑफ द मंथ इज ऑन डैश। अब वेनसडे पर आपने आना है और देखना है कि फर्स्ट वेनसडे कब आ रहा है, कौन सी डेट को आ रहा है, दैट इज 3 जनवरी। द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ इज ऑन, अब फ्राइडे का लास्ट फ्राइडे इस मंथ का वो क्या है, 26 जनवरी। व्हाट इज द डेट ऑन द थर्ड वेनसडे ऑफ द मंथ। अब थर्ड वेनसडे पे आपने वेनसडे पे अगेन जाना है रो पर और वहाँ से थर्ड काउंट करना है, मतलब नंबरिंग सीक्वेंस से 1 2 3। अगर हम काउंट करें, पहला 3 आ रहा है, सेकंड 10 है और थर्ड क्या आ रहा है 70। तो मतलब थर्ड वेनसडे कौन सा आ रहा है, आई मीन थर्ड वीक में जो वेनसडे आ रहा है उसकी डेट क्या है, 17 जनवरी। वट डे इज़ इट ऑन द 20th ऑफ द मंथ। मतलब वो पूछ रहा है कि इस मंथ की 20th डे को जो डेट है उसमें कौन सा डे आ रहा है। तो आपने कैलेंडर पे देखना है कि 20 कहाँ पर आ रहा है और उसमें आपने डे देखना है, उसके अकॉर्डिंग डे कौन सा आ रहा है, सैटरडे। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन दिस मंथ। अब वो पूछ रहे हैं कि इस मंथ में कितने वीक्स हैं, तो टोटल कितने वीक्स आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, योर टाइम चैप्टर हैज़ completed and your concepts about time and calendar have been cleared. Say Alhamdulillah. Allah Hafiz.